ज्ञान विविध्य चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सेठ श्री सुलगमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में भी आप लोगों का स्वागत है। और टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर माय स्पीच 10th क्लास ए मैथ्स ट्यूशन। दिस लेसन इज प्रिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स ए मैथ्स ट्यूशन। ओके, ये 10th क्लास के पाठ्यक्रम में बहुत अच्छा लेसन है, वेरी सिंपल एंड इजी लेसन इन 10th क्लास। तो इस चैप्टर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी थीम या स्टोरी बता देता हूँ। व्हाट इज द मेन स्टोरी ऑफ दिस लेसन? वेरी इजी लेसन, देयर आर मेनली टू कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। टुडे वी विल डिस्कस ए मैथ्स ट्यूशन। द टाइटल इज एप्रोप्रिएट एंड आफ्ट। इसका जो टाइटल है बहुत ही एप्रोप्रिएट है और आफ्ट उचित है, सिग्निफिकेंट है। स्टोरी क्या है? देयर आर मेनली टू कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। ए स्ट्रेंजर, द ओल्ड मैन एंड ए स्ट्रेंजर। STRANGER। स्ट्रेंजर वैसे बोलते हैं अजनबी को अपन, ठीक है, और ओल्ड मैन एक वृद्ध व्यक्ति को बोलते हैं। इन दोनों के बीच में स्टोरी क्या होती है? हैपन होती है। अब आप मेरे से पूछेंगे सर ये बताइए ओल्ड मैन का क्या रोल है और स्ट्रेंजर का व्हाट इज द रोल इन दिस स्टोरी? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंस्पायर्ड पॉइंट, मोटिवेशनल पॉइंट। वी कैन से दैट इट इज ए मोटिवेशनल पॉइंट। हाउ यू कैन से इट इज ए मोटिवेशनल पॉइंट? आप कैसे कह सकते हैं ये मोटिवेशनल पॉइंट है? तो इसी के बारे में अपन आज अध्ययन कर रहे हैं। तो ए मींस द ओल्ड मैन एंड ए स्ट्रेंजर। We can say that a stranger was a thief. We can say that he was a thief. And he was very kind and gentle person. The old man was very kind and gentle person. Very kind and gentle person. Gentle person in this story. Once upon a time, we begin. Once upon a time, there was the old man. He was held a feast at his home. He invited many friends and guests on this auspicious occasion because his birthday was a red letter day for him. He organized a feast. आप जानते हैं फिस्ट किसको बोलते हैं? फिस्ट का मतलब होता है पार्टी, दावत। उसने अपने घर में ये क्या किया? एक फिस्ट का आयोजन किया, दावत का आयोजन किया। Who organized a feast at his home? We can say that the old man organized a feast at his home. Okay. Once upon a time there was the old man who organized a party at his home. He invited many friends and guests on his birthday. On his birthday, many friends and many guests came on time. They were taking merrymaking and enjoying. There was a stranger came there also, who was hidden on his roof. When the party was running, the old man saw his reflection, his shadow. Reflection and shadow means same. उसकी परछाई को देखा, shadow and reflection on the floor, just like my shadow is reflecting on the blackboard. The old man thought he was a stranger person. The old man knew that he was not only a stranger man, he was also a thief. But he did not say any word to him. He gave him food and a bag of coins to a stranger man. Stranger man was very surprised. Stranger man was very surprised. He gave me food and a bag of coins.
stranger man was very surprised. He went away from there. We can say that the old man behavior and nature changed the life of a stranger. He was influenced by bad habits. He was a really thief. His soul was also very bad. However, the nature, the kindness of the gentleman and the nature of the gentleman changed the life of a stranger. After a few days back, the stranger man became very old. He had lost his eyesight. The stranger man came before him. He could not recognize him. Who is he? The stranger man reminded him on his birthday about his birthday party. The old man understood. He is a stranger man. Stranger man gave him a box of pearl. He gave him a box of pearl. Pearl बोलते मोती को. He became rich. Now he was a rich person. After a few days, the old man organized again party at his home. A stranger came there and gave him a box of pearl. The old man was very surprised to see it. When he opened the box, he found a pearl, a precious pearl. Do you know about the precious? Precious का मतलब होता है PRECIOUS. Precious का मतलब होता है मूल्यवान, valuable. We can say that it was a valuable pearl. बहुत ही मूल्यवान pearl था. The old man was very surprised. उसको बड़ा आश्चर्य हुआ. The old man told him का मतलब stranger person, told him, really you are my true son. I am feeling proud of you. You are my really a true son. वास्तव में तुम मेरे क्या हो? सच्चे मित्र. और उस सच्चे संग को देखकर बहुत ही उसने अपने आप को गर्व महसूस किया. Thus we can say that in the concluding line of the story, we can say that the stranger, the old man behavior and nature and conduct changed the life of a stranger, the life of thief. We can say that he was a thief, but the old man behavior and nature and conduct changed the life of a stranger man, because he was inspired. Inspired का मतलब होता है प्रेरित होना. He was inspired when प्रेरित हुआ by his nature and by his kindness. उसके अच्छी व्यवहार के व्यवहार से, बिहेवियर ऑफ काइंडनेस. बिहेवियर का मतलब होता है आचरण. BEHAVIOUR बिहेवियर एंड कंडक्ट से उसने क्या किया? एक स्ट्रेंजर के जीवन को क्या कर दिया? बदल दिया. Thus we can say it is a very motivational and inspired point in modern age. बताओ आधुनिक युग में ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना. अगर अपने घर के अंदर चोर घुस जाए बच्चों, तो अपन क्या करते हैं? We inform to the police. हम उसको एक मौका भी नहीं देते हैं इंप्रूव होने के लिए. उसकी लाइफ को इंप्रूव होने के लिए हम एक ओकेजन भी नहीं देते हैं, उसको एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते हैं. We should also give him an opportunity to improve his nature, just like a stranger man. तो कहने का मतलब बच्चों मेरा यह हुआ है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आदमी अपनी बैड इमेज के अंदर, बुराई होती है ना, इमेज, बैड इमेज के अंदर क्या होता है
जस्ट लाइक ए रेड टैग चूहेदानी में फंस जाता है। लेकिन हमें we should give him an opportunity and occasion so that he could improve his life। और उसने अपनी लाइफ को क्या कर लिया, छोड़ने अपने जीवन को सुधार लिया। तो लेकिन वो किससे इन्फ्लुएंस था? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना, किसी से इतना ज्यादा अफेक्टेड हुआ, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ उससे, इसके नेचर से, कि चोर के जीवन को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो हम भी किसी व्यक्ति को अपने आचरणों के द्वारा, अपने कंडक्ट के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा, अपने काइंडनेस के द्वारा, अपनी जेनरसिटी के द्वारा हम उसके लाइफ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और उसके अंदर हम ह्यूमैनिटी की जो नेचर है, जो मानवीय व्यवहार है, ह्यूमैनिटी का जो बिहेवियर है, वो क्या कर सकते हैं, वो जगा सकते हैं। तो हम भी चोर के जीवन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एक बुरे आदमी को हम भी क्या कर सकते हैं, अच्छा आदमी बना सकते हैं। तो हमें भी बुरे व्यक्ति के साथ भी कैसा करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि उसको एक मौका मिले और अपने जीवन के अंदर वो अच्छा जीवन जी सके। बहुत अच्छा सब है, बहुत अच्छा लेसन है ये। तो इस प्रकार इस ओल्ड वे में इस स्ट्रेंजर से क्या कहा, बोलिए, कि मुझे नहीं मालूम था कि आप इस प्रकार एक अच्छे धनवान व्यक्ति बन गए हैं, क्योंकि ये इसके बारे में नहीं जानता था। और कुछ सालों के बाद ये कैसा हो गया, बूढ़ा हो गया। जब स्ट्रेंजर मैन वापस आया उसके पास, तब उसने देखा, उसको पहचान नहीं पाया। He did not recognize him. Who is he? ये कौन है? Because his eyesight was also weak. उसकी जो eyesight थी वो क्या थी, कमजोर हो गई थी और वो देख नहीं सकता था। और जितने मेहमान आए, all the relatives and guests arrived there with gifts and presents, and the old man put the gift, उसने गिफ्ट को रखा on the floor, in the compound, so that everybody could see the gift, ताकि हर कोई गिफ्ट को देख सके। और वो चोर भी उस गिफ्ट को क्या कर रहा था, देख रहा था। जब उसने इस गिफ्ट को देखा तो बहुत कैसा हुआ, इंस्पायर्ड हुआ, प्रेरित हुआ कि सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं और मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं तो और चोरी करना चाहता हूँ इस घर के अंदर। देखिए उसके अंदर जो हार्ट और सोल के अंदर है वो उसने परिवर्तन किया। तो आदमी की फीलिंग्स को, उसकी सेंटिमेंटल को हमें क्या करना चाहिए, वी शुड चेंज हिज सेंटिमेंटल्स एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, क्योंकि हृदय की शुद्धता होती है, उसको चेंज करना चाहिए, सो दैट ही कुड बिकम ए गुड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ताकि वो भी एक क्या बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके और समाज को एक नई दिशा दे सके। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी, 10th क्लास का मैंने आपको पाठ पढ़ाया, बहुत इजी लेसन है, वेरी इजी एंड सिंपल लेसन। इसके अंदर क्वेश्चन आंसर बोर्ड के आए हुए हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ कौन से बोर्ड के अंदर आए हैं। राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी बोर्ड के अंदर है, 10th क्लास के अंदर प्रिस्क्राइब्ड आपके कोर्स में है। एक साइड आया हुआ है, हाउ यू कैन से दैट ए मेंस्ट्रुएशन टाइटल इज एप्रोप्रिएट। आप कैसे कह सकते हैं कि इसका टाइटल कैसा है, एप्रोप्रिएट है, उचित है। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, हाउ यू कैन से दैट द ओल्ड मैन बिहेवियर एंड काइंडनेस चेंज द लाइफ ऑफ ए स्ट्रेंजर। ए स्ट्रेंजर मींस थीफ। एक चोर के जीवन को किस प्रकार बदल सकता है। तो बोलो आपकी ये लेसन समझ में आया या नहीं आया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत ब्रीफ एंड शॉर्ट स्टोरी है इन इंग्लिश। एंड मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, तो आप भी उसको एक्सप्रेस करने का तरीका से। और आपको मैंने अंग्रेजी के अंदर रूल्स बताया है कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करके यू कैन आल्सो टेल दिस स्टोरी इन हिंदी एंड इंग्लिश में, बोथ लैंग्वेज। आप आराम से इसको इजी वे के अंदर क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसके अंदर बोर्ड के कुछ क्वेश्चन है,
तो आप घर से कर लेना, एक्सरसाइज करना, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए से पूछ लेना। तो आपको समझ आ गई स्टोरी, केवल इसके अंदर दो कैरेक्टर थे, वो दोनों कैरेक्टर के बारे में बता दिया। स्ट्रेंजर को मैंने क्या माना है, ठीक माना है, और इसको द ओल्ड मैन को मैंने एक काइंड पर्सन माना है। और ये स्टोरी बस अंत में ये होती है कि ओल्ड मैन के नेचर ने इस स्ट्रेंजर के जीवन को बदल दिया। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू अगेन नेक्स्ट।